Hello everyone, good evening. Let me just switch to the PowerPoint. And thank you so much, Ayush, for that introduction. Let me straight jump into the presentation. Well, we are all here to understand how LCHF is going to benefit you in terms of your weight loss as well as achieving overall health. See, we have to understand health first. Weight loss and all things will come. And let me also surprise you a little bit. Your goal is not weight loss. You know, your actual goal is to achieve the best body composition in terms of losing fat. And of course, if you can make an effort to build some lean muscle, so that's how is your goal. Okay, but we try to speak the wrong language because that is how we are keep on speaking and saying people, even that includes our doctors and medical fraternities. Okay, and we talk in this way, 10 किलो कम करना है 3 महीने में 6 महीने में मैं 20 किलो ओवरवेट हूँ. So who told you that you are overweight or this is your target goal? Well, we all know science has given us a terminology called BMI. Fair enough. Okay, BMI is a good starting point, particularly people who are chronically obese. But BMI does not, dictate you what should be your ideal weight. There is nothing called something ideal weight. It is all about a healthy body, healthy life. That is what. There is nothing called a healthy weight. And इसका मैं आपको एग्जांपल दूंगा मेरी खुद के एक्सपीरियंस के साथ. I will ask all of you to put little focus on this particular picture. So this is my journey. Okay, so this is my journey since last 5 years. 2014-15 तक मैं क्रॉनिकली ओबेस था. 110 से 105 उस रेंज में मैं होवर कर रहा था. फिर 2016 में when all my health conditions came to a chronic situation including obesity, so that is when the alarm bell rang in my head. I have to do something apart from weight loss, fat loss. I need to address my cholesterol issue. I need to address my pre-diabetic condition. I need to address my blood pressure and the fatty liver condition. So ये सारे चीजें एक साथ हो रहा था. सिर्फ और सिर्फ हमें वेट की तरफ देखना नहीं है. और जब मैं इस चीज को प्रॉपरली साइंटिफिक तरीके से अपना न्यूट्रिशनल नॉलेज के साथ जब इसको मैं एड्रेस करना शुरू किया, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो आई अचीव्ड फ्रॉम 100 kg to 78 kg in just 6 to 8 months. Okay, and 78 kg where I did not stop, and then it was sometime around June July 2016 when I had achieved 78, and since then, and the extreme right side picture is my current picture where I am standing at 90 kg. Now if I see this entire progress in terms of BMI scale, I am a super obese guy, and with my age and my height 90 kg, my BMI is somewhere near 29.5, which is putting you in obese condition. जो BMI की इंडेक्स है उसके हिसाब से हमें 25 या 25 के नीचे होना चाहिए. Whereas I am somewhere in 29, I am super obese. Should I bother looking into my this current picture? Well, now ये जो आप देख रहे हो इस पिक्चर में ये है फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन जो आप नहीं देख पा रहे हो दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनसाइड आउट. एंड फॉर दैट यू नीड टू पुट योर फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर टेबल. ना ये जो टेबल है ये मेरा जर्नी कैप्चर कर रहा है सितंबर 2010 से लेके मई 2019 का. अगर आप 2010, 14, 15 अप टू 16 तक आप देखोगे, I was overweight, no doubt. I was 110, then slowly 104, 195, something here. But इसके साथ साथ अगर आप देखोगे मेरा फैट परसेंटेज काफी हाई था और मेरा मसल परसेंटेज उसका वीजा विज जो था. देन अगर आप राइट साइड पे और देखेंगे तो दिस कैप्चर्स माय द कोलेस्ट्रॉल लेवल. और फिर एक्सट्रीम राइट पे अगर आप देखेंगे तो देयर इज समथिंग कॉल्ड CRP which represents your inflammation, and HbA1c. You all must be aware of this tells you about how your blood sugar is behaving in your body. So ये सारे चीजें हमें फोकस करना चाहिए. When we try to only focus on weight loss आप और इसको इग्नोर करते हैं तो वो हमारा पर्पस इतना सॉल्व नहीं होता है और ये सस्टेनेबल नहीं हो पाता है.
अगर हमारा फोकस थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, वेल इन दैट प्रोसेस यू विल डेफिनेटली गोइंग टू अचीव योर वेट लॉस ऑब्लिक फैट लॉस गोल। बट हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम अपने आप को अंदर से इनसाइड आउट हेल्दी बनाएं और ट्रांसफॉर्म करें। सो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज बाउंड टू हैपन। आगे बढ़ते हैं। और इस पिक्चर और मेरा केस स्टडीज के साथ जो मैसेज मैं आप सबको देना चाहता हूं वो ये है, इट्स नॉट द वेट दैट डिफाइन यू, राइट। खास करके मैं बोलूंगा कुछ लोग जो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है अपना वेट के लिए, आधा किलो बढ़ गया, 1.5 किलो में पिछले 10-15 दिनों से लॉकडाउन के कारण मैं बढ़ गया। सो ये आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके आएगा, बिकॉज सामने वाला आपको अप्रिशिएट करेगा विथ योर गुड फिजिक, गुड सेफ, ओके। सो the goal should be to achieve a good shape rather than weight. कोई आपको nobody is going to lift you and check आप 65.5 पे हो या 64.5 पे हो, okay, so nobody is going to do that. So please get out of this weight mindset. It is all getting into a good shape, and then of course your feel good factor in terms of your energy and improving on your health markers. My next message is very simple. There's no such thing as healthy weight. जैसे कि मैं मेरा एग्जांपल के हिसाब से दिखा रहा था, मेरा बीएमआई के हिसाब से आज की तारीख में मेरा वेट और हाइट के हिसाब से मुझे कहीं 72-75 केजी के आसपास होना चाहिए था, whereas today I am standing at 90 केजी. So well, अगर उसी स्केल में आप देखोगे तो आई एम सुपर अनहेल्दी, okay, but I don't feel so. In fact, at the age of 48 I feel like I am at 35, below 40. So that is what your energy level should speak for you. And the most important message is, look at the non-scale achievements. So when you start improving on your health markers, so these are your non-scale achievements. You cannot measure them on scale, rather you can feel it. Okay. Now healthy lifestyle, मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, मेरे जर्नी के थ्रू में, और मेरा जितने भी एक्सपीरियंस है पिछले 4-5 साल से मैं इस वेलनेस स्पेस में हूं, सो दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। एक हेल्दी लाइफस्टाइल 4 मेन पिलर के ऊपर खड़ा रहता है। वो क्या है? और आप देखो ये सब आपको पता है, इट इज नॉट दैट यू डोंट नो दिस। एक स्ट्रेस फ्री लाइफ। नाउ स्ट्रेस फ्री लाइफ, वी ऑल नो स्ट्रेस समहाट रहेगा, लेकिन रहेगा बोल के इसको हम पकड़ के रखेंगे तो स्ट्रेस हमारे ऊपर हावी होएगा। सो acknowledging that yes, I am under stress due to whatever reason, professional, family, personal, whatever, but we need to address it. We need to counter that stress. ये कैसे हो सकता है? जब आपका spiritual health की तरफ आप फोकस करेंगे और उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, जब आप आपका मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करेंगे, so that will help you. People are there who are working on this side, this part, which is perfectly fine. Then comes your a good sleep. Believe me, ह्यूमन बीइंग जो है ये स्लीप पे बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज करते हैं, या फिर हम इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। 7 से 8 घंटा साउंड स्लीप विद इन सर्केडियन स्लीपिंग विंडो, ये समझना बहुत जरूरी है। आप दिन में 10 घंटे सो लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हेल्थ बेनिफिट के कारण अगर आपको सोना है तो आपको 7 से 8 घंटा प्रॉपर स्लीपिंग विंडो के अंदर सोना है। अब प्रॉपर स्लीपिंग विंडो क्या है? नाउ वी ऑल नो, I'm sure some of you must be knowing circadian rhythm या circadian sleeping pattern। ये वो होता है जिस विंडो के अंदर रात का 12 अंदर आता है, the more it is centrally placed, it's the best window। अगर इस हिसाब से मैं बोलूं तो ideal sleeping window is 8 p.m. to 4 a.m. Okay, understood। हम 8 बजे सो नहीं सकते in today's modern this thing, but 12 बजे से पहले तो जरूर सो सकते हैं ना। तो हमें कोशिश करना चाहिए रात का मिडनाइट 12 o'clock शुड बी विद इन आवर स्लीपिंग जोन। अगर वो हम अचीव कर सकते हैं, दैट डजंट मीन दैट यू गो टू हिट द बेड एट 12 o'clock। नो, यू हैव टू हिट एटलीस्ट एन आवर और 2 बिफोर 12। सो दिस इज, इसके अंदर अगर 7-8 घंटे का बहुत अच्छा साउंड स्लीप आपका होता है तो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी एंड माइंड। देन कम्स फिजिकल एक्सरसाइज, एक्टिव लाइफस्टाइल, ये सबको पता है, एंड मेनी ऑफ यू मस्ट बी फॉलोइंग दिस आल्सो। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, जॉगिंग, योगा, प्राणायाम, व्हाटएवर यू डू, सो वी ऑल नो, बट हाउ सिस्टमैटिकली, हाउ कंसिस्टेंटली वी आर डूइंग इट, दैट्स द की। वेल, ये 3 चीज तो सबको पता है। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ योर मेटाबॉलिक हेल्थ? यहीं पे हम सब मार खा जाते हैं।
ऐसा नहीं है हम नहीं जानते, जब इसके थ्रू इसके अंदर मैं डीप डाइव करूंगा तो आपको समझ में आएगा, यू नो ऑल दिस थिंग्स, ओके, बट समहाउ वी मेस इट अप। आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाइटिंग, कोई भी हेल्दी ईटिंग लाइफस्टाइल वो होना चाहिए। कोई भी डाइट आप कर लो, आपने, आई एम श्योर मेनी ऑफ यू मस्ट हैव डन सम काइंड ऑफ डाइट विद सम डाइटिशियन और फॉलोइंग समबडी, व्हिच इज परफेक्टली फाइन, बट आप अगर देखोगे एक हेल्दी ईटिंग लाइफस्टाइल ऐसे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्ड होता है जिसका फोकस होता है टू सपोर्ट एंड बूस्ट योर इम्यून फंक्शन, ओके, और बूस्टिंग योर इम्यून फंक्शन नथिंग बट कैसे होता है, व्हेन इट काउंटर्स इन्फ्लेमेशन। सो हम मैं अभी आपको बात करूंगा इन्फ्लेमेशन के ऊपर, जो कि कोई मेटाबॉलिक हेल्थ का जो सबसे बड़ा एक चैलेंज है, दैट इज एड्रेसिंग एंड काउंटरिंग योर बॉडीज इन्फ्लेमेशन। ना इन्फ्लेमेशन क्या है अगर आपको समझना है लेमैन्स लैंग्वेज में, इट इज द फायर विद इन। इट इज नॉट दैट फायर दैट, सी बॉडी के अंदर फायर होता है which is that is good thing, okay, all the energy that is coming, the heat that is being generated and it is coming as a positive energy, that's perfectly fine. When I am talking about the inflammation in terms of fire within, it is all the negative thing that is generating within the body due to bad food habits, okay. एंड अगर इन्फ्लेमेशन है तो इस इन्फ्लेमेशन को काउंटर करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर फायर फाइटर्स भी है, एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो what is the main defense mechanism by our body against inflammation. It is your cholesterol. My message here is, do not fear cholesterol. The way we have been asked to fear cholesterol, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपका हार्ट अटैक हो जाएगा, आप बहुत ज्यादा मोटे हो जाओगे, आप बहुत ज्यादा परेशान होगे। Well, we have to understand what is cholesterol, what is contributing to what. But एक चीज समझना जरूरी है, you should not fear cholesterol. Now, when I am saying cholesterol, I'm talking about HDL cholesterol, LDL cholesterol, and those are anti-inflammatory, how they work against your inflammation. Inflammation is good. Now, inflammation is good का मतलब क्या है? Inflammation, think of inflammation as your home security system. घर पे अगर कोई टेलगेटिंग करता है या कोई आके चोरी करने की अटेम्प्ट करता है, अगर इस टाइम में घंटी बजती है या अलार्म सिस्टम बजता है, इट्स अ गुड साइन। ये साइन किस लिए है? टू अलर्ट यू। और अगर इससे आप अलर्ट नहीं होते हो, दैट मीन्स इट इज योर प्रॉब्लम, इट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ दैट अलार्म सिस्टम और द सिक्योरिटी सिस्टम, इट इज योर प्रॉब्लम, यू डिडंट लिसन टू इट, और सुनने के बाद भी आपने कोई स्टेप नहीं लिया, ठीक है। सो इन्फ्लेमेशन इज बॉडीज बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स सिस्टम फॉर एनी एक्सटर्नल थ्रेट। नाउ, बॉडी को एक्सटर्नल थ्रेट कहां से आ रहा है? बॉडी को एक्सटर्नल थ्रेट तीन तरीके से आ सकता है, फिजिकल, केमिकल, इमोशनल। वी ऑल नो इमोशनल, अगर बाहर से कुछ इमोशनल थ्रेट हमें पता है कि एनीथिंग दैट क्रिएट्स एक इमोशनल डिस्टर्बेंस और स्ट्रेस, दैट इज योर इमोशनल थ्रेट। That also contributes to your inflammation. बहुत ज्यादा, इसीलिए बोला जाता है आज जैसे कोरोना का चक्कर में अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें सोचोगे तो ये भी आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम को नीचे लेके जाता है और बॉडी में इन्फ्लेमेशन बिल्ड करता है। तो हमें हमेशा पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ रहना चाहिए। सो दिस इज योर इमोशनल हेल्थ। देन कम्स योर केमिकल थ्रेट एंड फिजिकल थ्रेट। फिजिकल थ्रेट आप बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो, इंजुरी हो जाता है, कहीं पे हड्डियां टूट जाती है, ये आपका फिजिकल थ्रेट है। आप जितना ज्यादा अपने आप को वहां से प्रोटेक्ट कर सकते हो, या अगर आपका कुछ इंजरी होता है तो उसका आपको हीलिंग टाइम देना पड़ेगा। सो बाकी क्या रहा? केमिकल। केमिकल डैमेज कैसे होता है बॉडी को? इट हैपेंस ओनली थ्रू वन थिंग, दैट इज नथिंग बट द थिंग दैट पुट इनसाइड योर बॉडी थ्रू योर माउथ, इट इज द फूड। So better food choices is very very important to decide कि आपका बॉडी कितना इन्फ्लेम्ड होगा या कितना इन्फ्लेम्ड नहीं होगा। You as a human being, owner of your own health, what is your responsibility? Your responsibility is to support your body to reduce inflammation before it become chronic inflammation. अगर इसका और थोड़ा सा मैं और ज्यादा अंडरस्टैंडेबल कोरिलेशन आपको दूं, तो जब हम कुछ बहुत टेस्टी फूड इन टर्म्स ऑफ समोसे और फ्राइड कचौरी टाइप का चीजें खाते हैं, काफी लोग ऐसे होंगे जिनको एसिडिटी होता होगा। तो ये जो एसिडिटी हमारे होती है ये सब चीजें खाने से, ये बॉडी का लो लेवल इन्फ्लेमेशन है। बॉडी कहीं ना कहीं पे आपको एक मैसेज दे रहा है कि द फूड यू आर पुटिंग, आपको तो बहुत मजा आया, आपका माउथ को मजा आया, आपका
डोपामाइन को मजा आया, जो आपका हैप्पी हार्मोन्स है, लेकिन इट क्रिएट्स प्रॉब्लम इनसाइड मी, इट क्रिएटेड अ फायर, जो मेरा अंदर में एक पॉल्यूशन क्रिएट किया है, आई एम नॉट टॉलरेटिंग इट, सो इट गिव्स यू इंडिकेशन इन टर्म्स ऑफ एसिडिटी। लेकिन हम ह्यूमन बींग आर बहुत स्मार्ट है, क्योंकि इसका टेस्ट मुझे पसंद है एंड टुमारो अगेन मुझे ये चीज खानी है, तो आई एम गोइंग टू काउंटर दिस इन्फ्लामेशन विथ एंटी इन्फ्लामेटरी टैबलेट विच इज एंटासिड। ओके, तो ये अगर आप करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो इन्फ्लामेशन होते 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 स्लोली इट कन्वर्ट्स टू क्रॉनिक इन्फ्लामेशन। जब क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है तो बॉडी स्टॉप्स गिविंग यू द अलार्म। ओके, तो हमें एक इल्यूजन हो जाता है, हमें एक गलतफहमी हो जाता है कि हमारा बॉडी इम्यून हो गया है इस चीजों को, लेकिन नहीं, बॉडी के अंदर वो जो डैमेज करना है वो साइलेंटली कर रहा है। सो एलसीएचएफ कंटेक्स्ट में the LCHF way of eating, it is based on anti-inflammation. It heals your body from inflammation. That is why I gave so much importance on this. Now, क्या हम इन्फ्लेमेशन को काउंटर कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम समझ लें कि कौन सा फूड है जो हमारा बॉडी को इन्फ्लामेशन करती है, हाईली इन्फ्लामेटरी फूड का लिस्ट मैं यहां पे दिखाऊंगा। आप इस प्रोग्राम के बाद गूगल करिए, ये जो मैं लिस्ट में दिखा रहा हूं यही चीजों में से ही परमुटेशन कॉम्बिनेशन में डिफरेंट ऑर्डर में आपको मिलेंगे, लेकिन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट दिस। वेल, इसको मैं 3 बकेट में रखा हूं। द रीजन इज 3 बकेट। एक बकेट वो है जिसके बारे में हम सबको पता है, और कहीं ना कहीं पे हम एक कॉन्शियस एफर्ट भी करते हैं इस चीजों से दूर रहने के लिए। अब कितना दूर रह पाते हैं वो अलग बात है, बट वी डू एक्नॉलेज दैट दीज आर इन्फ्लामेटरी, दीज आर damaging our body, and we should stay away. This is the bucket: alcohol, fast food, processed meat, or any processed food for that matter, which comes in a packet, ready to heat type of things, and artificial additives के साथ जितना टेस्टी फूड मार्केट में हमें यही प्रोसेस्ड फूड मिलता है, ये सारे चीजें। मेरा जो सेकंड बकेट है, ये वो बकेट ऑफ फूड है जो हमें बहुत टेम्प्ट करता है। कहीं ना कहीं पे हमें मालूम है इससे हमें प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हम इसको ओपनली एक्सेप्ट नहीं करते, हम इसको एक्नॉलेज नहीं करते, क्योंकि हम डरते हैं कि अगर हम द मोमेंट आई एक्सेप्ट दिस, कहीं ना कहीं पे आई विल बी आस्क्ड टू स्टॉप दिस, एंड ये मैं नहीं करना चाहता हूं। सो ये कौन सी है? आर्टिफिशियल स्वीटनर। आज हमें शुगर, सबको ये पता है, शुगर इज अ वेरी डेंजरस थिंग फॉर द बॉडी। इससे ओबेसिटी होती है, इसमें इन्फ्लेमेशन होती है, सब कुछ सबको मालूम है, डायबिटिक्स होता है, एंड it is cause of many other health issues. So हमने शुगर खाना बंद कर दिया, लेकिन उसके बदले में हम कहां पे आ गए? We always see a substitute. So now हम स्विच कर गए, आर्टिफिशियल स्वीटनर मार्केट में बहुत मिल रहे हैं। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, आर्टिफिशियल स्वीटनर जो हमें आज की तारीख में मिल रहा है वो 0 कैलोरी बोल के माना जा रहा है, और हमें हमारे दिमाग में एक चीज बहुत घुसाया गया है कि कैलोरी इज वेरी वेरी बैड, यू नो, कैलोरी इज बैड, सो यू स्टे अवे फ्रॉम कैलोरी और गो लो कैलोरी। सो आर्टिफिशियल स्वीटनर जितना है, ये सारे मार्केटिंग किया गया है आपको 0 कैलोरी के हिसाब से, तो हमने स्विच करके, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे कि 0 कैलोरी के साथ साथ ये हाईली इन्फ्लामेटरी है, बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन लेके आ रहा है। फ्राइड फूड सबको पता है, इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट, वेल, सो जो बेसिकली ट्रांस फैट जो बैड फैट होता है बेसिकली, एंड देन कन्वेंशनल ग्रेन फेड मीट, वो जो फैट मीट है, खास करके जो एनिमल्स का मीट आता है, जो यू नो इंडस्ट्रियल फूड के साथ उनका ग्रोथ हुआ है, वो सारे चीजें। एंड देन द लास्ट वन इज दैट सेट ऑफ फूड, इसमें कुछ चीजें हो सकती है, कुछ लोगों को एकदम पता ही नहीं है कि ये सारे इन्फ्लेमेटरी है, दूसरा कुछ लोगों को पता है बट they have ignored it. Okay, so let us see that may shock you. Sugar, highly inflammatory because it creates acidic, as sugar is acidic, ये बॉडी को एसिडिक बनाता है, और आपको सबको पता होगा ह्यूमन बॉडी इज न्यूट्रल टू अल्कलाइन, एसिडिक बॉडी इज मोर प्रोन टू डिजीज। ओके, एंड शुगर से, खास करके जो शुगर हम इंडस्ट्रियल शुगर लेते हैं, इसमें इट फीड्स टू आवर कैंसर सेल। अगर सबके बॉडी में कैंसर सेल है, कौन सा मालंजाइटिस है या कौन सा यू नो सप्रेस्ड है, जो कैंसरस नहीं है वो अलग बात है, लेकिन सबके अंदर कैंसर सेल है। एवरीबॉडी इज वल्नरेबल फॉर कैंसर, लेकिन कैंसर सेल कितना एक्टिवेट होगा और कितना स्प्रेड करेगा वो डिपेंड करता है आपका बॉडी कितना एसिडिक है और कितना आप शुगर इंटेक कर रहे हो। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल, नाउ वी हैव बीन आस्क्ड, these are very very healthy, ये वेजिटेबल से आया है, वेजिटेबल सोर्स से आया है, तो इट इज हेल्दी, वेजिटेबल्स आर हेल्दी, सो वी
somehow assumed कि it is vegetable oil, so it is healthy. But let me tell you, highly inflammatory, because these oils have undergone something called uh, hydrogenation. Okay, and that is the most damaging thing. Then refined flour, the flour that we are eating today in all the snacks, all the fast food, even forget about fast food, जो हम घर पे जो भी बनाते हैं उसमें भी हम बहुत ज्यादा रिफाइंड फ्लोर यूज करते हैं. ग्लूटेन, ग्लूटेन क्या है? ग्लूटेन कहां से आता है? ग्लूटेन आता है गेहूं से. इसीलिए गेहूं का फुलके इतना टेस्टी होता है. क्यों ये उतना ज्यादा टेस्टी होता है? और हमें बाजरा और ज्वार का या फिर चुलाई या अमरंथ जो कहते हैं या रागी का रोटी या पराठा फुलके इतना पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें ग्लूटेन नहीं है. इसमें ग्लूटेन है. ग्लूटेन मेक्स द फूड वेरी वेरी टेस्टी, और वो फ्लफीनेस लेके आता है ब्रेड में. हमें इसलिए ब्रेड बहुत पसंद है. हमें इसलिए वो सारे जो पफ्स एंड सारी चीजें मिलती है, या नान, ये सारी चीजें हमें बहुत पसंद है. बट ग्लूटेन इज हाईली इन्फ्लेमेटरी. Okay, and the last one may confuse most of the people. I am not getting into the the complexity of this, but please अपना research खुद करिए. Dairy milk, I can give you 100 of reasons why not one should not drink dairy milk as an adult human being. So that is, आप अपना रिसर्च खुद करिए. जब मेरे साथ कोई प्रोग्राम करते हैं तो मैं इसका पूरा इन डेप्थ एनालिसिस करके आपको मैं समझाता हूँ हाउ आपका हेल्थ कंडीशन के हिसाब से. ओके, ना मेटाबॉलिक हेल्थ को हमें एड्रेस करने के लिए एक आज की कंडीशन को समझना पड़ेगा. आज जो कोविड-19 का केसेस है, ये एक स्टैटिस्टिक्स मैंने लिया है बिजनेस इनसाइडर मार्च 2020 का. इसमें ये जो टेबल है, इसमें ये दिखाया जा रहा है कि पीपल जो डेथ रेट है, डेथ रेट ऑफ कोविड-19 पेशेंट विद प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन. अगर आप सबसे राइट वाला देखेंगे, ये वाला, अगर किसी के अंदर कोई भी प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन नहीं है, यू आर ए हेल्दी ह्यूमन बीइंग विदाउट एनी हेल्थ इश्यूज, the rate of death is just 1%. Whereas vis-a-vis अगर आप ये देखेंगे, people with heart disease, diabetics, blood pressure and other issues, so 10%, 7%, 6%, 5.6%, this is a death rate. अब क्या, और ये लोग कौन हैं? Who are these people and who are vulnerable for these conditions? Now, people who are having a underlying metabolic syndrome, they are more vulnerable for this situation. ओके, नाउ व्हाट इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम? अब थोड़ा सा सेल्फ इवैल्यूएट करिए. क्या आप उनमें से है जिनके अंदर कोई भी एक कंडीशन है, लाइक एब्डोमिनल ओबेसिटी, लॉट ऑफ visceral fat in your abdominal area? This is one condition of having metabolic syndrome. आप डे टू डे लाइफ में खाते पीते एक्सरसाइज करते सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी आप क्वाइट ऑफन फटीग फील करते हैं, या लो एनर्जी फील करते हैं, या आपके बॉडी में जॉइंट पेन होता है. उसके बाद आपका हो गया फैटी लिवर कंडीशन. ओके, ब्लड शुगर ज्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है, एलडीएल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है ये ज्यादा है, एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है वो लो है, एंड देन यू आर हाइपरटेंसिव एंड आपका बॉडी बहुत ज्यादा इन्फ्लेम्ड है. सो दीज आर कॉल्ड मेटाबॉलिक सिंड्रोम. अगर इनमें से कुछ चीजें है तो आप वल्नरेबल हो फॉर द नेक्स्ट स्टेज. ओके, नाउ क्या हम इसको एड्रेस कर सकते हैं? एंड यस, मैं एज ए एलसीएचएफ हेल्थ कोच मैं एड्रेस करता हूं मेरा क्लाइंट का मेटाबॉलिक हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए. और मेटाबॉलिक हेल्थ को जब आप उसका रूट कॉज के साथ जब एड्रेस करते हो, यू काउंटर योर एब्डोमिनल ओबेसिटी, और यहीं से होती है आपका वेट लॉस. ओके, अब ये जो वेट लॉस है ये ड्रास्टिक नहीं है, ठीक है, ये धीरे धीरे होता है. आप हो सकता है 3 महीना, 4 महीना, 5 महीने में सिर्फ 2.5 से 3 या 4 किलो कम किया है, लेकिन आपका एब्डोमेन में 10 इंचेस कम हो गया, आपका ट्राउजर साइज 40 से 34 आ गया. Don't you think that's a great achievement? And apart from that, you are getting away from all these conditions. So this should be our focus, should be addressing and improving our metabolic health. कैसे कर सकते हैं? Metabolic health is dependent on a condition which is called how you are keeping your body in terms of insulin sensitivity, insulin sensitive or insulin resistant. I am sure all of you must have heard the word called insulin. It's the master metabolic hormone inside the body. इसको अगर आप कंट्रोल में नहीं रखोगे तो ये it can create havoc inside your body. Okay? जब ये आपके कंट्रोल में है and doing its job 100% as it should be, this condition is called insulin sensitive. जब ये
इसका कंट्रोल आपने इस कंट्रोल इसके ऊपर खो बैठे हो, और इट स्टार्ट्स डोमिनेटिंग योर बॉडी, यू एज ए ह्यूमन बीइंग। सो आपका बॉडी धीरे धीरे इसका जो इंस्ट्रक्शंस है और जो रिलेशनशिप है आपका बॉडी का पूरा जो मेटाबॉलिक प्रोसेस का इंसुलिन के साथ, ये जब खत्म होता है इसको कहा जाता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसको थोड़ा समझने के लिए हमें एक क्विकली समझना पड़ेगा, एज ए एडल्ट ह्यूमन बीइंग आपके बॉडी में कितना ब्लड है। ओके, नाउ many of you must be knowing the average, the total blood in our human body, adult, be it male or female, it is 4.5 से 5.5 liter. So on an average it is 5 liter. Okay, now what is our average healthy blood sugar? It is 100 mg per dl, 100 milligram per deciliter. ओके, वेल देयर इज फास्टिंग, देयर इज पीपी, सो जो ऊपर नीचे होता है, लेकिन ये 100 के थोड़ा से नीचे जाता है, 100 के थोड़ा सा ऊपर होता है, जो 70-80 से लेके ऊपर आपका 140 तक जा सकता है, 130-140 तक जा सकता है, बट ऑन एन एवरेज इट इज 100 mg पर डीएल। नाउ अगर आप अपना मैथमेटिक्स करोगे, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इज 1 ग्राम पर 1 लीटर, और उसी हिसाब से 5 लीटर में 5 ग्राम पर 5 लीटर, विच इज इक्विवेलेंट टू 5 ग्राम शुगर। ओके, नाउ हो क्या रहा है, हम खा क्या रहे हैं? हम खा रहे हैं, ये हमारा घर का खाना है, इंडियन ब्रेकफास्ट, इंडियन लंच एंड डिनर। अब यहां पे अगर आप फोकस करोगे इन टर्म्स ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, इसमें है क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। दैट इज व्हाट द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इज ऑल अबाउट। ओके, दैट इज व्हाट वी हैव रेड इन आवर बेसिक साइंस। ओके, अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट का रेशियो से आप अगर देखेंगे, ऑलमोस्ट 80-85% और एट टाइम्स इट इज 90% हमारे फूड प्लेट में है कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट ब्रेक्स डाउन टू ग्लूकोज एंड फाइबर। डिपेंड करता है फाइबर कितना है, अदरवाइज प्रिंसिपली इट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज इज नथिंग बट इट इज शुगर, राइट? देन कम्स योर प्रोटीन। अगर आप कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं इन ए इंडियन मील में, कॉन्शियस एफर्ट टू ईट प्रोटीन, यू आर ईटिंग ओनली 15-20%। अगर आप एक हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन हो और तीनों मील में या 2 मेजर मील में आप अच्छे पोर्शन ऑफ नॉनवेज खा रहे हो, तो आप ज्यादा से ज्यादा 25-30% प्रोटीन खा रहे हो, ठीक है, नॉट मोर देन दैट। और जो वेजिटेरियन है उनके लिए आई वुड से थोड़ा सा, मैं यहाँ पे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन का कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ पे एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, मैं फूड मैक्रो के हिसाब से मैं बात करूंगा। तो प्रोटीन का हमारा मात्रा हमारा इंडियन फूड में ये स्टैंडर्ड है, ये एक्सेप्टेड है, एवरीबॉडी नोज दिस। देन कम्स आवर फैट। Now, when we talk of fat, what we are eating is all the bad fat in the name of refined vegetable oil, because we have been asked not to eat lot of fat, cholesterol, or we have been asked to fear fat. So हमने घी खाना बंद कर दिया, मक्खन खाना बंद कर दिया, चीज खाना बंद कर दिया, हमने क्रीम खाना बंद कर दिया। So हमने जो खाया वो तेल खाया, वो भी plant oil, refined oil, okay, which is damaging us every day, which is killing us slowly. और सबसे खतरनाक क्या है? इंडियन स्नैकिंग, रिफाइंड फ्लोर, रिफाइंड ऑयल एंड रिफाइंड शुगर का एक कॉकटेल है। दिस नॉट ओनली मेक्स यू ओबेस, इट इंक्रीजेस योर इन्फ्लेमेशन, राइट? अब जैसे कि मैंने बोला था, इंसुलिन इज योर मास्टर मेटाबॉलिक हार्मोन एंड इट हैज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ योर ग्लूकोज ऑब्लिक शुगर ऑब्लिक कार्बोहाइड्रेट, राइट? सो जब हम एक कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं तो हमारा ग्लूकोज स्पाइक होता है, और इतना ज्यादा स्पाइक होता है कि आपका सिस्टम से ग्लूकोज खत्म होने के बाद भी इसका जो दबदबा है, इंसुलिन इज स्टिल देयर इनसाइड आवर बॉडी। एंड आर यू एबल टू नोटिस दिस गैप बिटवीन दिस इंसुलिन लाइन एंड द कार्बोहाइड्रेट? दिस इज द मोस्ट डेंजरस टाइम जोन। यहां पे होती है खतरनाक हंगर, इमोशनल हंगर, जहां पे आपका दिमाग खराब होता है और आपको टेम्पटेशन होता है जंक फूड खाने के लिए, कुछ मीठा खाने के लिए, कुछ जंकी चीज खाने के लिए। हियर इंसुलिन इज क्रिएटिंग दैट इनसाइड। आपको सही में भूख नहीं लग रहा है, लेकिन इंसुलिन इज क्रिएटिंग दैट इमोशनल हंगर। नाउ लुक एट the relationship of insulin with the other 2 macronutrients. So protein is there, fat is there. जब आप प्रोटीन खाते हो तब भी इंसुलिन आता है, because insulin has a role to play in your protein synthesis, and protein is not used by our body as the first source of energy. Protein is spared by our body for muscle repair, muscle building, and your other organ repair. Okay, so प्रोटीन सिंथेसिस शुरुआत करने के लिए आपका इंसुलिन आता है, लेकिन वो आके इनिशिएट करके चला जाता है। एंड व्हेन यू ईट
fat. When I said fat, it is dietary fat, and we will understand what is dietary fat. I am telling you, it does not disturb insulin. Insulin has no role to play in fat metabolism. लेकिन अब हो क्या रहा है, because we are eating way too much of carbohydrate, which is nothing but sugar, we eat a king size breakfast because we have been told breakfast is the most important meal of the day. I will again not get into that. For me, breakfast is not required for human body. Okay, but for that you need to program your body. Okay, I play with your hormones condition to program your hormonal condition. So a day come when you don't feel like eating breakfast. So it is not. Having said that, let us understand going with the current advisory. सो हम खाते हैं एक किंग साइज ब्रेकफास्ट, लंच भी हमारा कुछ कम नहीं होता है एंड अकॉर्डिंगली डिनर भी कुछ कम नहीं होता है, एंड ये तीनों में हमारा प्लेट का किंग कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है. सो एज वी ईट ए किंग साइज कार्बोहाइड्रेट मील ऑल 3 टाइम्स, एंड यहाँ पे जब खाया तो स्पाइक किया, और ये इंसुलिन यहाँ पे आते आते हमने दूसरा मील खाया, और ये नॉर्मल होते होते हम तीसरा मील खाया. सो इफ यू सी दिस this flattened yellow curve, this is insulin. Insulin is always there inside our system and dominating us. अब थोड़ा मेटाबॉलिज्म समझेंगे, उसके बाद मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा और आपका चार्ट में कुछ क्वेश्चंस है तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन. ओके, नाउ मेटाबॉलिज्म क्या है? द मेथड, द प्रोसेस बाय आवर बॉडी टू जनरेट एनर्जी फ्रॉम आवर फूड. एंड एज आई टोल्ड यू, protein is spared by the body. Body does not use protein as a first option for getting energy. वो सिर्फ और सिर्फ जब जरूरत होता है स्टार्वेशन मोड में, खास करके जब आपको खाना नहीं मिल रहा है, आपका बॉडी में फैट नहीं है, तभी वो आपका प्रोटीन पे डिपेंड करता है एनर्जी के लिए. अदरवाइज इट्स फर्स्ट प्रेफरेंस इज कार्बोहाइड्रेट एंड सेकंड प्रेफरेंस इज फैट. ओके, ना अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खाते हो या रिड्यूस कर देते हो, तभी वो स्विच करेगा फैट पे. अब इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है. कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज ड्रिवन बाय इंसुलिन, एंड एज आई टोल्ड यू, इंसुलिन क्यों हमारा स्पाइक करता है? क्योंकि हम हमेशा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं. आपका फैट मेटाबॉलिज्म का ड्राइवर कौन है? वेल, द हार्मोन कॉल्ड ग्लूकागॉन, व्हिच इज जस्ट द काउंटर पार्ट ऑफ इंसुलिन. और ये दोनों का दोनों हार्मोन कहां प्रोड्यूस होता है? ये प्रोड्यूस होता है हमारा पैनक्रियास में. ओके, पैनक्रियास has the capability to secrete insulin and glucagon depending on body का सिस्टम क्या है, आप खाना क्या खाते हो, क्या फ्यूल आ रहा है. जैसे फ्यूल आ रहा है, लिवर इंस्ट्रक्ट करता है पैनक्रियास को, ओके अभी कार्बोहाइड्रेट आ रहा है तो इंसुलिन जनरेट करो, सिक्रेट करो. अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं आ रहा है, ज्यादा फैट प्रोटीन आ रहा है, तो आप ग्लूकागॉन करो. सो एक कंडीशन यहाँ पे ये भी है, जब pancreas can secrete only one hormone at one point of time. It cannot secrete both. Okay, so when it is secreting insulin, it cannot secrete glucagon. It will only secrete glucagon only in the absence of insulin. So you have to understand the condition. ओके, अब यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा हमारा फूड मोस्टली क्या होता है. हमने बोला कि सबसे पहले प्रोटीन जो होता है, ये बॉडी इसको स्पेयर करता है, इसको कैलोरी में यूज नहीं करता. अब लोगों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, प्रोटीन कहां से आएगा. ओके, प्रोटीन का फैट की बात करने से पहले थोड़ा समझना पड़ेगा कैलोरी. हमें कैलोरी मिलती है हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट से, जो प्रोटीन, फैट और कार्ब्स होते हैं. आप अगर देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा टेबल मैंने लगाया, कैलोरी वाइज कार्बोहाइड्रेट एंड फैट टॉप में आता है, क्योंकि बॉडी का प्रिफर्ड फ्यूल होता है कार्बोहाइड्रेट. अगर बॉडी को आप कार्बोहाइड्रेट नहीं देते हो तो ये स्विच करता है फैट पे. कार्बोहाइड्रेट कितना कैलोरी देती है? 1 ग्राम 4 कैलोरीज. फैट कितना देता है? 9 कैलोरी. 1 ग्राम फैट खाओगे तो ये आपको डबल कैलोरी देगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कैलोरी डेंस है फैट, कार्बोहाइड्रेट कम कैलोरी है. नाउ प्रोटीन इज द लीस्ट प्रिफर्ड फ्यूल, बट कितना कैलोरी देता है? 4. बट यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द 4 कैलोरी कमिंग फ्रॉम प्रोटीन एंड 4 कैलोरी कमिंग फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट हैव हेल एंड हेवन डिफरेंस. ओके, अब इसको मैं अभी तो नहीं लूंगा, आप जब मेरे साथ प्रोग्राम अगर करोगे तो वो मैं समझाता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस. ओके, कमिंग टू द सोर्सेस ऑफ प्रोटीन. नॉन वेजिटेरियन, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सब समझते हैं. वेजिटेरियन के लिए, well, when we say non-veg, I would say let us don't call it non-vegetarian, vegetarian, call it animal protein and plant protein. Well, if you see these two pictures, these are milk protein, and milk protein is also animal protein because it is coming from animal. Okay, but yeah, Indian vegetarians do consume milk. This is paneer, this is cheese. They are a good source of protein. Okay, don't get confused with the dairy milk, what I had told in the inflammatory things. I had told about the milk only, but
our body can tolerate to some extent the protein and the fat. Fat 100% tolerate करता है, protein भी if not 100% at least 90-95% protein हम डाइजेस्ट कर लेते हैं और बॉडी उसको मैनेज कर लेता है. इट इज ओनली वेरी सिलेक्टिव पीपल जिनको इवन पनीर खाने से भी इश्यूज होता है डाइजेशन में एंड इन्फ्लामेशन क्रिएट करती है. सो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. एंड देन देयर आर प्लांट प्रोटीन्स और आई वुड से वेगन प्रोटीन, खास करके जो लोग मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं लेते हैं तो उनके लिए बहुत सारे हैं. सो हाउ consciously we are making effort to eat our proteins, that we need to understand. Fat, ये होता है फैट जो डाइटरी फैट है, गुड डाइटरी फैट. नाउ गुड डाइटरी फैट कम्स फ्रॉम एनिमल सोर्स से अगर बात करें तो एक हो गया घी, मक्खन, बटर एंड मोस्ट ऑफ द मिल्क फैट दैट इज एनिमल फैट अगेन. तो ये सारे चीजें हो गए. प्लांट सोर्स से जो फैट आता है वो आता है आपका कोकोनट ऑयल. वर्ल्ड दुनिया का बेहतरीन फैट जो है वो है आपका बॉडी जिसको बेस्ट इस्तेमाल करता है वो है कोकोनट ऑयल. एंड देन ऑफ कोर्स all the nuts, healthy nuts, very nutrient dense. They are a good combination of good fat, good protein and good fiber rich carbohydrate. इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें शुगर बहुत बहुत ना का बराबर है. ओनली जो नट्स में शुगर थोड़ा सा ज्यादा है. Mr. Dash, you need to unmute yourself and you need to present again because somebody pressed the present button. Okay. Sincere request to everyone, please do not press the present button. It spoils the experience of everyone. Okay, got my screen please? Yes, perfectly. ओके, सो आप लोगों ने ये वाला स्क्रीन देखा था? Yes, please go on. This was covered. ठीक है. प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट. सो देखिए ये सारे जो है ना ऊपर का तीन चीजें अगर देखेंगे तो ये सारे हैं. एवरीबॉडी नोज वेजिटेबल्स आर ग्रेट, okay, and they are great carbohydrate and they do wonder to our body. But tell me, how many of us make a conscious effort to eat some portion of vegetables in our all three meals? We don't do that. We hardly. There are people I know जो वेजिटेरियन होते हुए भी हम आलू खाते हैं, चना खाते हैं, राजमा खाते हैं, हम पनीर खाते हैं, लेकिन वेजिटेबल्स नहीं खाते. ओके, सो दिस इज योर कार्बोहाइड्रेट. क्योंकि अगर आप आलू खाते हैं या चना खाते हैं उसमें भी आपका जो शुगर आता है. Okay, and that is why you can see the legumes and pulses I have put under carbohydrate. Okay, many people may get confused. अरे ये तो हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि यही प्रोटीन है. Well, you have to understand. You have to use your own brain. Pulses and दाल, legumes ये सब में 12 से 12 to 18% of प्रोटीन होता है, whereas 60 to 80% कार्बोहाइड्रेट होता है और उसमें अच्छा खासा परसेंटेज शुगर होता है. Okay, that is why dals and all these things are so tasty also. राइट. सो अगर कोई चीज में इस रेशियो में प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट है तो वेयर यू आर गोइंग टू पुट? आई पुट इट एज गुड कार्बोहाइड्रेट. ओके, अगर मैं कार्बोहाइड्रेट सिर्फ यहां से लेता हूं एंड देन मोस्ट ऑफ माय कार्बोहाइड्रेट्स इज कमिंग फ्रॉम दिस वेजिटेबल्स, सम कमिंग फ्रॉम माय नट्स. ओके, एज आई टोल्ड यू नट्स आर प्रोटीन फैट है बट इसमें भी कार्बोहाइड्रेट है. एंड देन आई ईट अ गुड पोर्शन ऑफ फ्रूट्स. सो दिस इज अ ग्रेट कार्बोहाइड्रेट सोर्स. लेकिन हम आज क्या कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं? हम खा रहे हैं addictive carbohydrates. Very very tasty and very simple to overdo. हम यही खा रहे हैं, एडिक्टिवली खा रहे हैं और बहुत ज्यादा खा रहे हैं. और इसके साथ हमारा कोई ध्यान नहीं है वेजिटेबल्स की तरफ, कोई ध्यान नहीं है प्रोटीन की तरफ और कोई ध्यान नहीं है हेल्दी फैट की तरफ. राइट. और जब मैं ये सारे के साथ ये टेबल देख रहा हूं कि आपका दिमाग में ये हमेशा प्रिंटेड होना चाहिए कहां से कितना कैलोरीज मिल रहा है. अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की जगह पे फैट खाऊंगा तो मुझे डबल कैलोरी मिलेगा और हेल्दी कैलोरीज मिलेगा. और ये भी अनदर प्रॉब्लम है हमारे इंडियन सोसाइटी. वी आर टू एडिक्टेड टुवर्ड्स स्वीट्स. ओके, एंड दीज कम्स अंडर एडिक्टिव कार्बोहाइड्रेट. ये आपको सिर्फ मोटापा नहीं लेके आता है, ये आपका बॉडी पे इन्फ्लेमेशन भी लेके आ रहा है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा शुगर है. ओके, यहां पे मैं एक छोटा सा ब्रेक लेके आपका चैट बॉक्स देखूंगा. क्विकली. ओके,
ठीक है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है तो मैं एंड पे ही क्वेश्चन ले लूंगा। प्लीज डू नॉट टेक, आई एम प्योर वेजिटेरियन एंड मुझे कुछ प्रोटीन डाइजेस्ट होती नहीं होती है, तो मैं प्रोटीन की जरूरत कैसे पूरा करूं? हाँ, आई विल रिप्लाई इट एट द एंड। ओके, सो लेट मी जंप टू द प्रेजेंटेशन। यहां पे हमें समझने की जरूरत है। अभी हमने समझ लिया कि प्रोटीन क्या है, फैट क्या है और कार्बोहाइड्रेट क्या है। हमें अभी समझना है कि हमें कौन सा कितना खाना चाहिए। ओके, तो इस टेबल को अगर आप ध्यान देंगे, द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ 3 डाइटरी मैक्रोन्यूट्रिएंट, क्योंकि मैक्रोन्यूट्रिएंट, हमें मैक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए, हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या चीज होती है? आपका मिनरल्स, विटामिन्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको कुछ भी कैलोरीज नहीं देते, बट दे आर लाइक दैट इंजन ऑयल, गियर ऑयल एंड ब्रेक ऑयल दैट यू पुट इन योर कार। ओके, कार को थ्रॉटल ये लोग नहीं देते, कार को थ्रॉटल आपका डीजल या पेट्रोल देती है। ठीक है, ठीक उसी तरह आपको बॉडी को थ्रॉटल ये तीनों चीजें देती हैं, क्योंकि यहाँ ये आपको एनर्जी देती है, राइट? सो उसका अलग इंपॉर्टेंस है। मैं यहाँ पे तो वो कवर ही नहीं कर रहा हूं। जब मेरे साथ प्रोग्राम जो लोग करते हैं, मैं उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट के ऊपर एक सेशन में लेता हूँ, इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड हाउ टू मीट दैट। वी आर हियर covering only the macronutrients, because major culprit of obesity and metabolic syndrome is this. Now coming to carbohydrate, you see it is only the source of energy. इसका कोई रोल ही नहीं है बॉडी में, इसका काम सिर्फ आपको एनर्जी देना, दैट्स इट, और टेस्ट देना आपका टंग को। ठीक है, which is fair enough, that's fine. अब बहुत सारा एनर्जी आपका बॉडी को कब तक चाहिए? जब तक आपका बॉडी फिजिकली ग्रो कर रहा है। एंड इसीलिए अगर आप थोड़ा सा लुक बैक टू योर कॉलेज, अर्ली कॉलेज डेज और स्कूल डेज, when you were young in that stage, we used to eat crap, कुछ भी खा लो, स्टिल एक्सेप्ट दोज वेरी सिलेक्टिव कैटेगरी, जो बच्चों का जो चाइल्ड ओबेसिटी ड्यू टू वट एवर हार्मोनल इश्यूज एंड ऑल, मोस्ट ऑफ द पीपल एट दैट स्टेज आर लीन एंड थिन एंड परफेक्ट। ओके, बिकॉज कितना भी क्रैप खाओ, इन टर्म्स ऑफ कितने भी कार्बोहाइड्रेट खाओ, कितना भी जंक खाओ, बॉडी इज मैनेजिंग इट, बिकॉज योर बॉडी वाज is metabolizing everything, hormonal condition is damn good, and your energy expenditure is superb. Okay, so that is why you keep on ingesting calories, ingesting energies, body is managing it. But जैसे ही आपका फिजिकल ग्रोथ खत्म हो गया, जब आप ऑफिस जॉब, टेबल जॉब करने लग गए, बिजनेस का काम हो गया, आपका फिजिकल एक्टिविटी भी कम हो गया, आपका you just try to correlate, कब हमारा सबसे पहला लेयर ऑफ टमी में चर्बी लगने आ गया, टायर आ गया? जनरली 25, 27, 28 साल, कुछ लोगों को 30, 35 साल, डिपेंडिंग अपॉन एक्टिविटी लेवल, आपका लाइफस्टाइल, हमारा लाइफस्टाइल कंप्लीटली चेंज हो जाता है उस उम्र में, जब हम बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म को फोकस करते हैं, हेल्थ का केयर नहीं लेते हैं, एंड ऑल दिस थिंग्स, दूसरा टेंशन बिल्डअप होने लगता है। तो उस स्टेज में आपका बॉडी को इतना ज्यादा फिजिकल ग्रोथ नहीं हो रहा है। वहां पे जो आपका ग्रोथ धीरे धीरे नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ में क्या जो ग्रोथ हो रहा है, वो आपका इमोशनल ग्रोथ हो रहा है, आपका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो रहा है, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है। और ये सब चीजों के लिए कार्बोहाइड्रेट का कोई रोल ही नहीं है। इस सब के लिए जो जिसका रोल है वो है प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, बिकॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड phytonutrients coming from your vegetables, they are generating something called hormones and enzymes. If you see your enzymes, what is the major component of your enzyme? Enzymes are nothing but proteins, amino acids. Similarly, hormones are nothing but 80% of your hormones are cholesterol, fat. Okay, apart from that, all your fat soluble vitamins, आपका A, D, E, K, I am sure you must be knowing these are the fat soluble vitamins. आप सरप्राइज हो जाओगे जान के कि विटामिन A, D, E, K नहीं आने से आपका क्या हो रहा है। टुडे इफ समवन इज हैविंग जॉइंट इश्यूज, मसल्स पेन, ये आपका विटामिन डी डेफिशिएंसी है। आपका डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है, मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, बॉडी का न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी खत्म हो चुका है, इट इज लैक ऑफ विटामिन डी। आज की तारीख में द आयरनी इज, डॉक्टर को पास भी आप जाते हो, विटामिन डी डेफिशिएंसी 20 के आसपास है, डॉक्टर बोलते कोई बात नहीं है, ये ठीक है, इंडिया में ऐसे चलता है। बिलीव मी, नहीं चलता। यू शुड नेवर एवर एक्सेप्ट दैट। योर फोकस शुड बी टेकिंग विटामिन डी टू एनीवेयर अबव द जो रेंज है 40 to 60, आपको 40 के ऊपर मेंटेन करना ही है। कैसे होगा? आप सिर्फ विटामिन डी की गोलियां खाने से नहीं होगा। पहली बात, आप विटामिन डी का कोर्स कर लेते हो, कोर्स के बाद विटामिन डी कितना अप हुआ आप चेक नहीं करते हो। अगर विटामिन डी का कोर्स कर रहे हो तो कोर्स खत्म होने के बाद आपको चेक करना चाहिए क्या ये वो अप हुआ या नहीं हुआ। मेनी टाइम्स नहीं होता है, बिकॉज आपका ऑलरेडी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी खत्म है। तो यू नीड टू वर्क ऑन समथिंग। आपके साथ एक
सप्लीमेंट लेना पड़ता है, which is again a fat soluble supplement. It's called coenzyme Q10. Coenzyme Q10 increases your body's absorption capacity of fat. क्योंकि जो फैट नहीं खाया है, अभी अचानक फैट खाने से बॉडी उसको एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगा. विटामिन के इज योर नेचुरल क्लिंजर ऑफ योर आर्टरीज. कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक नहीं होता है, इन्फ्लामेशन से होता है. एंड नेचर इज सच, ये ऑलरेडी आर्टेरियल इन्फ्लामेशन को क्लीन करने का उपाय बना के रखा है. विटामिन के इज योर आर्टेरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी vitamin. Because we don't eat fat, because we don't get enough fat soluble vitamins in terms of vitamin K, हमारा आर्टरीज में प्लेक होता है, और जब प्लेक होता है तो कोलेस्ट्रॉल होगा, तो वो जाके वहां पे चोक होगा. You got it? So not eating fat and not eating enough protein, आज हमारा मसल नीचे चला गया है, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो है वो पूरा नीचे डाउन हो रहा है, हमारा स्ट्रेंथ खत्म हो रहा है, हम जल्दी बूढ़े हो रहे हैं. The more muscles you have, you can increase your longevity. Not having enough muscles, there is a big muscle science. मैं मेरा प्रोग्राम में मसल साइंस का एक चैप्टर है, एक सेशन होता है. I make people understand you don't have to work out because you have to build six pack abs or good biceps and triceps. It is for your longevity, you need to work on your muscles. Okay, problem क्या है obesity का? Obesity is not a problem, believe me. ओबेसिटी साथ में लेके आता है जो कंडीशन, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस. आपका बॉडी इंसुलिन इतना ज्यादा डोमिनेंट होता है, सो इंसुलिन स्टॉप्स फंक्शनिंग एंड डूइंग इट्स जॉब. इंसुलिन का प्राइमरी जॉब है आपका शुगर को ब्लड से निकाल के स्टोर करना. वो आपका शुगर को स्टोर करने का 3 जगह है. 2 जगह है लिमिटेड, जो है आपका मसल्स एंड लिवर, और तीसरा जगह जो है वो है अनलिमिटेड स्टोरेज, दैट इज इट कन्वर्ट्स extra glucose to fat and it can store anywhere and everywhere. Okay, entire body can store fat. सबसे ज्यादा हमारा एब्डोमेन में है एडिपोज टिश्यू जो हमारा रख सकता है. ठीक है, तो ये इंसुलिन का काम है. लेकिन जब इंसुलिन ये काम सही तरीके से नहीं कर पाता है, तो हमारा जो कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन एंड स्टोरेज नहीं हो पाता है, तो ग्लूकोज फ्री ग्लूकोज आपका ब्लड में स्पिल करता है, तो आप डायबिटिक होते हो. जो कन्वर्शन एंड स्टोरेज ऑफ फैट एंड स्टोर्ड इट एज ट्राइग्लिसराइड नहीं हो पाता है, तो फ्री फैटी एसिड्स आपका फ्लो करता है बॉडी में, और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है. जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है आपका ब्लड में, तो विस्कोसिटी बढ़ता है, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है. तो इंसुलिन रेजिस्टेंस का जो 4 सबसे इनिशियल इंडिकेशन है कि आपका बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव से इंसुलिन रेजिस्टेंस में. सबसे पहले एब्डोमिनल ओबेसिटी, सेकेंड इज शुगर लेवल बढ़ना, तीसरा है कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना, जो कि खास करके आपका एलडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड, एंड चौथा है धीरे धीरे ब्लड प्रेशर आना. ये 4 चीज डायरेक्ट रिलेटेड है. एंड देन यू कैन रीड थ्रू ऑल दिस अदर सिम्टम्स जो इनडायरेक्टली इंसुलिन रेजिस्टेंस इसको फ्यूलिंग करता है, आज कैटालिटिक इफेक्ट वो देता है. तो जिसका डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया है, ये सब चीजों को, पीसीओएस, पीसीओडी इन फीमेल, जिनका यूरिक एसिड का इश्यू है, उसको इंस्टिगेट करता है. अगर कोई इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, तो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम को ऐसे चुटकी से सॉल्व किया जाता है. लेकिन बॉडी अगर बहुत ज्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा. ठीक है, कैंसर को भी ये करता है, एंड देन सो लॉट मेनी थिंग्स, इन्फ्लेमेशन को भी ये और बढ़ाता है. सो हमने प्रॉब्लम देख लिया, समझ लिया. अब हम थोड़ा सा सॉल्यूशन की बात करते हैं. ये भी आपने देखा जब मैं इंडियन घर का खाना दिखा रहा था. सो दिस इज आवर macronutrient and this is our the macronutrient distribution in our Indian food plate. Okay, और हम कोई भी लॉजिक के साथ ये नहीं बोल सकते कि दिस इज अ बैलेंस्ड डाइट, राइट. ये समझने के बाद कि हमारा बॉडी को ज्यादा प्रोटीन एंड ज्यादा फैट की जरूरत है, ना कि हमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है. प्रोटीन के साथ भी हमें बहुत ज्यादा प्रोटीन की जरूरत नहीं है. हमें एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ 30-35% ऑफ आवर कैलोरी अगर हमारा प्रोटीन से आ रहा है, विच इज गुड एनफ टू मेंटेन आवर मसल मास एंड बॉडी का रिपेयर फंक्शन करने के लिए. हमें बहुत ज्यादा, अनलेस अंटिल समबडी इनटू एथलेटिज्म एंड बॉडी बिल्डिंग, आपको 30-35% इज परफेक्टली फाइन. सो अगर आप कार्बोहाइड्रेट को कम कर रहे हो, और एनर्जी के लिए आपको कहां डिपेंड करना है? फैट पे, हेल्दी फैट पे. और ये जो परसेंटेज लिखा हुआ है ना, ये आप मत सोचो कि क्वांटिटी वाइज में बोल रहा हूं, दिस इज कैलोरी वाइज. ठीक है, सो जैसे कि 1 ग्राम आपने देखा, तो कैलोरी वाइज अगर आप फैट पे ज्यादा डिपेंड करते हो, तो क्वांटिटी वाइज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि 1 ग्राम फैट आपको डबल कैलोरी देती है देन कार्बोहाइड्रेट. ओके, सो इस चीज को हम कैसे अचीव कर सकते हैं? एंड आज यू कैन सी आई हैव गिवन अ रेंज. सो दीज आर वेरी वेरी
customizable depending upon your lifestyle, your eating habits, your food choices and your current condition. Okay, so एक जो एथलेटिक है उसको कार्ब जहां पे रहेगा, जो डायबिटिक है उसका अलग रहेगा, जो जिसका प्रोटीन का उस हिसाब से किसका किडनी फंक्शन कैसा है, किसका यूरिक एसिड कंडीशन क्या है, कौन मैनेज कर पाता है, कौन मैनेज नहीं कर पाता है, फैट अगेन किसका कोलेस्ट्रॉल का कंडीशन कैसा है। तो ये सारे चीजों के सब ये कस्टमाइज किया जाता है जब मैं प्रोग्राम करता हूं इंडिविजुअलाइज्ड। इसको हम अचीव कैसे कर सकते हैं? हमें हमारा कार्ब इंटेक को लो करना है, अंडरस्टूड है, वेरी सिंपल। हमारा फैट इंटेक, हेल्दी फैट इंटेक को बढ़ाना है और प्रोटीन मॉडरेट है, वही मॉडरेटली हम इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लो कार्बोहाइड्रेट, हाई फैट एंड मॉडरेट प्रोटीन। इट इज अ वे ऑफ ईटिंग लाइफस्टाइल। मेनी पीपल थिंक एलसीएच है, अरे ये तो कोई फैट डाइट होगा जिससे बस वेट लॉस हो जाता है। बिलीव मी, इट इज नॉट अ डाइट, इट्स अ लाइफस्टाइल। ओके, because you not only get your first short term goal of weight loss, fat loss, but in it is sustainably अगर आप इसको करोगे तो आप अपना बॉडी को अंदर से हील करते हो। इट्स ए हीलिंग डाइट, हीलिंग लाइफस्टाइल। थोड़ा सा इसका साइंस भी मैं समझा देता हूं ताकि जिंदगी भर आप इसको कभी भूलोगे नहीं। जैसे एक हाइब्रिड कार में दो टैंक होता है, एक तो गैस सिलेंडर जो है गैस में अगर चल रहा है, एंड अल्टरनेट इज योर पेट्रोल और डीजल। ठीक उसी तरह हमारा बॉडी में दो फ्यूल से चल सकता है, शुगर, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। हमें पता है हमारा जो शुगर टैंक है वो लिमिटेड है, हम मैक्सिमम 2000 कैलोरी तक स्टोर कर सकते हैं फ्रॉम शुगर, दैट इज 500 ग्राम्स ऑफ ग्लाइकोजन हम स्टोर कर सकते हैं हमारा लिवर और मसल में मिला के। इससे ज्यादा आप नहीं दे सकते, इसीलिए हमें रोज खाना पड़ता है, बिकॉज वी आर सो डिपेंडेंट ऑन कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जब आपका फ्यूल का मेजर सोर्स हो जाता है तो आपको रोज खाना पड़ता है, बिकॉज टंकी लिमिटेड है। लेकिन जो फैट का टंकी है ना, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। दैट इज हाउ वी गेट फैटर एंड फैटर एंड फैटर। तो हमें पता होना चाहिए कि कब ये लीवर चेंज होना चाहिए। हमारा बॉडी को हम ट्रेन कर सकते हैं कैसे? जब हम हमारा हार्मोनल रेगुलेशन हम कर सकते हैं। तो यही सारा ट्रिक मैं समझाता हूं, ये कर सकते हैं, वेरी वेल कर सकते हैं। एक प्रोसेस बिल्ड होता है बॉडी में कॉल्ड कीटोसिस। ओके, आई एम श्योर मेनी ऑफ कीटोसिस का नाम सुनने से बहुत लोग चौंके होंगे कीटो डाइट का नाम पे। कीटो डाइट इज अ स्पेसिफिक थिंग, बट विदाउट गेटिंग इनटू कीटो डाइट आल्सो यू कैन ब्रिंग द प्रोसेस ऑफ कीटोसिस इनसाइड योर बॉडी। खास करके सबके अंदर कीटोसिस होती है जब आप फास्टिंग करते हो, चाहे वो कोई व्रत में करते हो या कहीं पे सिचुएशनली फास्टिंग हो जाती है, आप 10-12 घंटे खाना नहीं खा पाते हो, तब भी आपका बॉडी में कीटोसिस होती है। जैसे कि मैंने वो 4 पिलर दिखाया था, एक पिलर तो था कि आप स्ट्रेस को काउंटर करिए, उसके लिए आप अपना स्पिरिचुअल एंड मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करिए। द अदर टू आर स्लीप एंड मूवमेंट विच इज एक्सरसाइज। और मेरा मसल साइंस एंड एक्सरसाइज एंड मूवमेंट के ऊपर एक सेशन रहता है मेरा जो इंडिविजुअलाइज क्लाइंट्स के साथ, कि ये क्यों करना जरूरी है। ओके, हम करते हैं, बहुत लोग करते हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे आर डूइंग। मैक्सिमम वो यही सोच रहे होंगे कि मैं मसल बिल्ड करने के लिए कर रहा हूं या मेरा जॉइंट हेल्थ करने के लिए कर रहा हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप कर रहे हो अनजाने में, you are improving your lymphatic system by doing these movements. And lymphatic system is the major contributor of your immune function. Okay, so मैं इसके और ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा। बेनिफिट्स, विजिबल फैट लॉस कहां से होती है? फैट लॉस तो बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं, थोड़ा बहुत तो पतले हो जाते हैं, वेट कम हो जाता है, लेकिन टमी वहीं का वहीं रहता है। तो यहां इस तरीके से जब आप फैट लॉस करोगे द प्रॉपर साइंटिफिक मेथड में, आपका विजिबल फैट लॉस होता है फ्रॉम द मोस्ट पेनफुल एरिया व्हिच इज योर टमी। और दूसरा, ये आप फील करने लगते हो अंदर से, आपका हार्मोनल जब बैलेंस होती है बॉडी के अंदर से, तब आपका मूड एनहांस होता है एंड नोबडी कैन सी इट, इट इज ओनली यू कैन फील इट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, it is not at all a restrictive diet. Okay, you are just playing with your macros, किसको कम करते हो किसको ज्यादा करते हो, खाना आप वही खाते हो। सबसे पहले आप इंफ्लेमेटरी फूड्स को बाहर निकालते हो, बाकी जो नॉन इंफ्लेमेटरी फूड रह गया उसके अंदर से आप इतने बढ़िया स्वादिष्ट पकवान बना के खाओगे। अब मैं आपको कुछ ऐसे पिक्चर्स दिखाऊंगा कुछ मेरे क्लाइंट्स के, जो मेरे साथ, ये तो एक रेगुलर फीचर है। कुछ लोग अपना ट्रांसफॉर्मेशन का फोटो शेयर करने में पसंद करते हैं क्योंकि ये उनको, वो खुद कैप्चर करते हैं और ये उनको मोटिवेट करता है एंड दे कीप शेयरिंग इट इन देयर सोशल मीडिया। सो दिस इज जेंटलमैन मिस्टर सिजॉय मुखर्जी फ्रॉम गुड़गांव, who was not only obese but उनका कोलेस्ट्रॉल का इशू था, ब्लड प्रेशर का इशू था,
She underwent a program with me. So this is 6 months journey of him. It's a not only आज I keep telling you, it not only physical transformation लेके आता है, ये आपको heal करता है अंदर से. Here is someone again, struggling with fat loss, blood pressure का issue था. Here is a lady from Gurgaon again thyroid का issue था and fat का था, obesity. One more from Kolkata. So people are doing this from all across India, and quite a few clients, almost nearly 8 to 10% of clients are from outside Indians, of course, because my specialization is in Indian LCHF. So I do only with Indian people, but they are in different part of the world. These two, I would say, this lady from Devghar, Jharkhand, she not only, fat loss तो है ही है, उनका diabetic condition था, thyroid condition था, PCOS, PCOD का condition था. Right side, this is the corporate lady from Kolkata. See, when your transformation happens from inside out, क्या होता है, आपका एक अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अंदर से आती है, ओके, एंड वो आपका झलकता है आपका पर्सनालिटी में. वेल, एंड हियर अनदर सेट ऑफ पीपल जिनका मैं दिखाऊंगा, जो पिक्चर तो शेयर करना पसंद इतना नहीं करते, बट या दे कीप शेयरिंग their experience through WhatsApp, email and all these things. And खास करके one of my very important client है, 64 years में लोग गिव अप मार देते हैं, सोचते हैं यार मेरा कुछ नहीं होगा, बट सी इज अलाइव है, सी वाज अलाइव है, ओके. उनका घुटनों का प्रॉब्लम था, ऑस्टियोआर्थराइटिस था एंड जॉइंट इश्यूज था, उनको छूने से, उनका स्किन में टच करने से उनको पेन होता था, ठीक है, वो चल नहीं पाते थे. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हेन शी हैड कम टू मी, शी वाज लाइक कुछ सपोर्ट सिस्टम के साथ उस चल के आते थे. अभी वो जिम करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं. वो अभी गए थे कहाँ पे, हरिद्वार गए थे, बोले मैं विदाउट एनी सपोर्ट मैंने कम से कम 3-4 किलोमीटर कुछ चली हूँ. So these are the kind of healing that happens from within, apart from your weight loss, fat loss. So tons of energy, revival of energy, improvement in joint health. So yeah, that is what somewhere she has mentioned. ये उनका कोच ने मेरे को भेजा था, giving challenge to her younger counterpart in the gym. Again, a professor in Gujarat University, he was having blood pressure issue apart from obesity. I think here is someone who had vitamin D gone to 14.48. That is alarming. And we achieved 80 in 4 months. Just 4 months. The combination of right vitamin D and right other supplements. Same with vitamin B12. आप इंडिया में जाइए, 200 से 800 का रेंज होता है, 200 से 900 का. जैसे ही आपका 210 220 हो गया, डॉक्टर बोलेंगे बस आ गया. No, it has to be somewhere at the range of 450 to 500. SGOT, SGPT is your liver parameters. Horrible condition आ गया था because he was also very alcoholic. हमने उनका डाइट चेंज किया, वो खुद बोले कि भैया अभी मेरा जो एक अल्कोहलिज्म था वो अपने आप खत्म हो गया. द क्रेविंग टुवर्ड्स अल्कोहल मेरा धीरे धीरे खत्म हो गया. सो व्हेन यू करेक्ट योर फूड, you will also come out from your bad habits. ये बॉडी ऑटोमेटिकली रिपेल करने लगेगा वहां से, और आप धीरे धीरे बॉडी विल गेट addicted to good food. Okay. Similarly, HbA1c भी करेक्ट हुआ, weight loss भी हुआ. See, weight loss बहुत ज्यादा, I won't say this is something great, but see the inch loss. And the most important is, thanks for all the knowledge to heal my body from inside out. Someone here at the age of 60, just look at his face. Okay, does he look like 60? Okay, he was again having, see, he's a vegetarian and 17 साल से BP medicine पे चल रहे थे, hypertensive medication for almost 17 years. He not only come out completely from BP medicine, look at his skin, look at his agility and all. Again, someone who lost some good inches and weight, as well as look at his HbA1c corrected from 7.4 to 6.6. This is just in 4 months. And what he is saying is, honestly, I have used only just 70% of your advice, not even 100%. And still within 3 weeks, he achieved this. Again, someone was doing, gentleman is from Ghaziabad. He was doing this for diabetics. Well, now, once you enroll with me, okay, once you enroll with me, what exactly this program gives you? We have live sessions, personalized live sessions होती है. Then मैं आपको मैकेनिज्म देता हूँ, टेम्पलेट्स देता हूँ, जहां पे आप अपना ट्रैकिंग करते हो. आई टीच यू हाउ टू मेक योर ओन डाइट प्लान. ओके, मैं आपको किक स्टार्ट करने के लिए डाइट प्लान देता हूँ, लेकिन द फंक्शन इज
The success of the program is the day you tear that diet chart and throw it to the dustbin. That's the success of the program. You need to understand your body and you need to eat and make your own diet plan. तभी ये सस्टेनेबल होगा. और यही चीज मैं सिखाता हूँ. मैं आपको न्यूट्रिशनिस्ट बनाता हूँ, आपका खुद का न्यूट्रिशनिस्ट बनाता हूँ. अगेन वेट ट्रैकिंग तो नहीं कराता हूं, खास करके वेट इज देयर, दैट ऑप्शन इज देयर, यू कैन ऑलवेज चेक योर वेट, बट आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट योर वेट. व्हाट आई एम बॉदर्ड अबाउट इज योर हेल्थ मार्कर्स एंड योर इंच लॉसेस. एंड आपको बहुत सारे रिसोर्सेस मिलते हैं, कुछ यूटिलिटी रिसोर्सेस मिलते हैं, सॉरी, जैसे कि आपको प्रिपेयर, कैसे आप अपने आप को जर्नी को प्रिपेयर करोगे. देन देयर आर सो मेनी टेम्पलेट्स मिलते हैं, फूड डायरी टेम्पलेट्स, हेल्थ मार्कर टेम्पलेट्स, शुगर लेवल टेम्पलेट डायबिटिक के लिए, एंथ्रोपोमेट्री टेम्पलेट इंच मेजरमेंट्स के लिए, ये सारी यूटिलिटी चीजें आपको मिलती है. उसके बाद आपको कुछ एसेंशियल चीजें मिलती है, जैसे कि शॉपिंग लिस्ट, गाइड बुक, वेजिटेरियन, एगिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, आपको पूरा फूड गाइड मिलता है. इसके अंदर कम से कम 100 डेली घर पे बनाया हुआ खाने का तस्वीर और उसका रेसिपीज दिया हुआ है. स्लो कार्ब फूड, हम यहाँ पे जीरो कार्ब नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे लो कार्ब कर रहे हैं. सो चूजिंग लो कार्ब फ्रॉम स्लो कार्ब, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्लो कार्ब. देन इंडिया में खास करके पीपल स्ट्रगल करते हैं नवरात्रि के टाइम में क्या खाऊं. सो यू गेट नवरात्रि गाइड, यू गेट डेजर्ट गाइड. शुगर नहीं खाना डज नॉट मीन दैट कि डेजर्ट नहीं खाना, तो आप कैसे हेल्दी डेजर्ट खा सकते हो. एंड देन देयर आर सो मेनी एडिशनल बेनिफिट्स, सम बुकलेट्स, योगा गाइड, वर्कआउट गाइड, ये सारी चीजें आपको मिलती है. थैंक यू. सो माय लास्ट मैसेज हियर इन माय थैंक यू स्लाइड इज, व्हेन यू डिसाइड टू मेक ए चेंज, द चेंज हैपेंस. सो या, थैंक यू. Ayush, up to you. Satyajit, you can answer the questions. There are many questions. Okay, let me just go through this. I am pure vegetarian. जैसे कि अब मैंने आपको दिखाया, वेजिटेरियन के लिए हमें प्रोटीन, पहली बात तो है प्रोटीन. प्रोटीन एक ऐसा चीज है, यू नीड टू ट्रेन योर बॉडी. आप सोचो, आपका बॉडी इतना कार्बोहाइड्रेट मैनेज करने के लिए बना ही नहीं है, लेकिन हम ठूसते जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट. बॉडी मैनेज कर रहा है ना, because you have trained your body, you have trained your metabolic system like that. So once you start training your metabolic system to manage your fat and protein, तब वो होगा. फैट एंड प्रोटीन डाइजेशन के लिए क्या है, साथ में एनफ वेजिटेबल्स की जरूरत है. ओके, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत है. आपको सप्लीमेंट्स, when I say supplements, either you can eat those from the real food, अगर नहीं कर पाते हो तो आपको एडिशनल सप्लीमेंट्स देना पड़ेगा. देन पानी एक बहुत अहम रोल ये करते हैं. आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे 2 बोतल पानी पी चुका हूं 1 घंटे में, और पूरे दिन में मैं 6 से 7 लीटर पानी पीता हूं. वाटर इज योर वन ऑफ द मेजर फूड. इट डजंट गिव यू कैलोरी, बट योर बॉडी इज 70% वाटर. हम पानी नहीं पीते. द मेजर प्रॉब्लम ऑफ नॉट एबल टू डाइजेस्ट फैट एंड प्रोटीन इज यू डोंट ड्रिंक वाटर. ठीक है. और पानी पीने से खाली नहीं होगा, बॉडी को बेस्ट पानी को यूटिलाइज करने के लिए जो चाहिए वो इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए. ठीक है, तो वो भी मैं आपको समझाता हूं और देखता हूं आपका रिपोर्ट. मैं बहुत सारे टेस्ट करवाता हूं, टेस्ट के हिसाब से किसको कौन सा चाहिए वो मैं बताता हूं. ठीक है. सो वेजिटेरियन कोई इशू नहीं है. वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वेगन, दिस आर फिलोसॉफी. वन शुड ऑलवेज स्टिक टू हिज हर फिलोसॉफी. आपको समझना है न्यूट्रिशन और आपका बॉडी, ये 2 चीजें जब आप समझ जाओगे आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो. देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वेजिटेरियन एंड गुड एथलेटिक बॉडी उनके पास है. आई हैव studied that there are 9 calories in carbs, not 4. Sorry, please दोबारा देख लीजिए, ये गलत है. हर जगह पे ही आपको मिलेगा carb has 4 calories, fat is 9 calories, protein is 4 calories. Not right to sleep in the afternoon if जानी. See, आफ्टरनून में जो सोना होता है उसका है कि आप अपने आप को see that is, अगर आपका रात में नींद पूरा नहीं हुआ है and you want to complete that and give you a rest to your body, physical rest, mental rest, so that's perfectly fine. Weight loss, fat loss, afternoon sleep, उसका कुछ नहीं है. It all boils down to your energy expenditure. Okay, believe me, आप सोते हुए भी energy expenditure करते हो. खास करके जब हम मैं बच्चों में वो यंग टाइम की बात कर रहा था, हमारा इतना ज्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर कहाँ पे होता था मालूम है? हम 600 से 800 कैलोरी बर्न करते हैं. खास करके जो टीनेजर्स होते हैं, ये रात में सोते हुए 600 से 800 कैलोरी एनर्जी एक्सपेंडिचर करते हैं. और हम एज ए एडल्ट जब रात को सोते हैं तो 200 से 300 कैलोरी हम बर्न करते हैं. तो आप सोने से भी कैलोरी बर्न करते हो, आपका फूड डाइजेशन हो रहा है. देयर इज समथिंग कॉल्ड TEF, थर्मल इफेक्ट, थर्मल
इफेक्ट ऑफ फूड। तो आप कैसे फूड खा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जब उसका डाइजेशन होगा, मेटाबॉलिज्म हो, वहां पे भी आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है। फैट एंड प्रोटीन रिच फूड में ज्यादा, पर्टिकुलरली प्रोटीन में बहुत ज्यादा टीएफ वैल्यू बहुत ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट का जीरो है। आप कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करते हो तो कोई वहां पे एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता है, क्योंकि इमीडिएटली शुगर में कन्वर्ट होता है। सो स्लीप के साथ इसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। हाँ, अगर एक बंदा बहुत ही लेथर्जिक है, कोई एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, उसके बावजूद तो सो रहा है, so those are bad. This is a habit. I have gas problem while having pulses. Okay, see this is food allergy की बात है। आपको आपका फूड एलर्जी टेस्ट कराना है, कौन सा चीजों के साथ आपका फूड एलर्जी है, कौन गैस करता है, सब्जेक्टिव है। मेनी पीपल गेट गैस फ्रॉम cruciferous vegetables. When I say cruciferous vegetables, they are the cabbage, then cauliflower, but those are the one of the best vegetables. अब जिसको अगर ये प्रॉब्लम है तो फिर you have to quit that and look the other alternatives. Okay, there are other vegetables. So ये प्रॉब्लम है, बट हाँ गैस का दूसरे भी प्रॉब्लम है अगर आप प्रोटीन के साथ इसको अच्छे से मिक्स करोगे। अच्छा, गैस का और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप रिफाइंड ऑयल क्विट करोगे और घी पे आ जाओगे या कोकोनट ऑयल पे आ जाओगे तो भी आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो सकता है। फूड कॉम्बिनेशंस मैटर्स। What is the best time to consume protein and what are veg foods under keto? ओके, सो मैं इतना डिटेल्स तो यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको पर्सनलाइज्ड ये सब बता सकता हूँ। बेस्ट टाइम प्रोटीन के लिए ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू लुक एट योर एनर्जी एक्सपेंडिचर और आप उसको कैसे मैनेज करते हो। कुछ लोगों को सुबह सुबह उठ के कोई प्रोटीन खा लेता है तो प्रॉब्लम करता है, कुछ लोगों को वो बढ़िया काम करता है थोड़ा एक्सरसाइज के बाद, कुछ लोग कभी भी ले सकते हैं। तो आप अगर एक ऐसे ही एथलेटिक पर्सन और आपका बहुत अच्छा एक्टिव लाइफस्टाइल है तो आप थोड़े थोड़े करके प्रोटीन को डिस्ट्रीब्यूट करके पूरा आपका जो ईटिंग विंडो है, जनरली एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है आपका ईटिंग विंडो एंड फास्टिंग विंडो, आई मीन नॉन ईटिंग विंडो। सो आपका ईटिंग विंडो अगर मान लीजिए कि 10 घंटे का है तो 10 घंटे में आप थोड़े थोड़े करके भी आप उसको स्प्रेड कर सकते हो। सो यू हैव टू ट्रेन योर बॉडी एक्चुअली टू मैनेज योर प्रोटीन। Please give us a list of pulses and dals that we can have. Well, for this kind of detailed thing, you need to join my program, of course. Then comes, okay, man of 61 got to work out and stretch for 1.5 hours. Perfectly fine. बहुत अच्छी बात है. Now up from earlier status of 50 minutes. Suggest diet. Okay, so again personalized program चाहिए आपका कंडीशन के हिसाब से. But yeah, I work with people. मेरा जो सबसे eldest client है वो 71 years के है जो डायबिटिक रिवर्सल के लिए काम कर रहे थे, प्रोग्राम कर रहे थे मुझे साथ. Was interested. Yeah. Schedule रिवाइज सिंस 2 months. बॉडी में फैट कितना है एंड मसल कितना है इसका चेक करें। हाँ, उसके लिए आपको एक बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस करना पड़ता है। आप कोई भी सेंटर जहाँ पे बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस मशीन है, आप वहां पे जा सकते हैं। और बहुत सारे जो इमेजिंग सेंटर होते हैं जहाँ पे आपका होता है ना MRI एंड ऑल दिस थिंग्स, उनके पास भी एक हाई एंड डिवाइस होता है जिसको कहते हैं व्हाट डू यू कॉल इट, डेक्सा स्कैनिंग। उससे भी आपका बॉडी कंपोजिशन काफी एक्यूरेटली निकलता है, तो ये सब करवाया जा सकता है। डज LCHF कॉजेस कॉन्स्टिपेशन? इट मे, बट इसका डिपेंड करता है ना, सी क्या फूड कॉम्बिनेशन मैटर्स। आप कॉन्स्टिपेशन ना होने के लिए जो चीजें लेना चाहिए उसको साथ में लेना है। सो LCHF खाली मैंने जो फैट प्रोटीन और कार्ब में जो दिखाया वो खाना नहीं है, उसके साथ आपका सप्लीमेंटेशन करना है, आपको वेजिटेबल्स प्रॉपर होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रॉपर होना चाहिए। तो ये सब अगर करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम कुछ लोगों को आता है, सबको नहीं आता है। आता है तो उसका हम काउंटर कर सकते हैं। डच PCOD गेट्स क्योर्ड? वेल, क्योर नहीं हो सकता है, इसका गारंटी नहीं है, बट द कंडीशन इंप्रूव्स। ओके, PCOS इज द सिंड्रोम दैट गेट न्यूट्रलाइज्ड, बट PCOD जब वो सिंड्रोम से वो डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, बट जो रिलेटेड कंडीशन है ये इंप्रूव जरूर हो सकता है। बेसिकली PCOD is a hormonal problem. LCHS brings back hormonal balance. Those interested in the group, perfectly fine. Very informative, valuable presentation. Thank you so much, Pratik Sharma. Okay. क्या चावल खाने से भी मोटापा बढ़ता है? नहीं नहीं, रोटी खाने से मोटापा बढ़ता है, चावल से नहीं बढ़ता है। आधी इंडिया तो चावल पे ही जी रहा है। By which type of
food we can maintain our skin after 35? Well, इसके लिए बहुत सारे फूड कॉम्बिनेशन होता है और आपका ईटिंग हैबिट्स, आपका ईटिंग बिहेवियर इसके ऊपर डिपेंड करता है. I have heard that much intake of protein causes uric acid. Well, that is what we need to find our limit ना, our body how it is managing our protein. आपका बॉडी का कैपेबिलिटी कितना है. और यूरिक एसिड का प्रॉब्लम प्रोटीन नहीं है. जो लोग यूरिक एसिड का प्रॉब्लम को सीधा सीधा प्रोटीन के साथ जोड़ देते हैं, उनका कहीं ना कहीं पे न्यूट्रिशनल नॉलेज बहुत लिमिटेड है. इसके लिए बोलते हैं प्रोटीन के अंदर सर्टेन अमाइनो एसिड्स है जो जो कारण है यूरिक एसिड का, जो बॉडी इस्तेमाल नहीं कर पाता है. तो ये हम करते हैं, इसको इंडिविजुअलाइज्ड है ये सारी चीजें. आपका बॉडी कैसे मैनेज कर रहा है प्रोटीन और कौन सा प्रोटीन को कैसे मैनेज कर रहा है, ये हम देख के फिर यूरिक एसिड के लिए हम अकॉर्डिंगली प्रोटीन सजेस्ट करते हैं. आई थिंक आई एम डन. Thank you, sir. This is Ayush here. Am I audible, Satyajit ji? Yeah, you are audible very much. All right. Thank you. So I hope the session was informative और सभी लोगों को कुछ जानने सीखने का मिला. So basically, the program which Mr. Satyajit he was talking about, it would be starting on 13th of June on a Saturday. Basically, it's a 3-step process. सीखने को मिलेगा, जैसे कि ये सेशंस हैं. सीखना इसलिए जरूरी है ताकि हम अपने आप को मैनेज करना खुद से सीख सकें. ब्लाइंडली किसी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट को फॉलो करना वो प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत समय तक हो नहीं पाता है. साथ में प्रैक्टिस करें और लगातार इम्प्रूव करते रहें. Every kind of disease can be tackled and managed to the extent it is possible to manage through diet. तो लगभग सभी तरह की चीजों को हैंडल किया जा सकता है, those which are chronic in nature. क्या गेन करोगे आप अपने इंचेस में और अपने वेट में गेन कर सकते हो, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करोगे, अपनी सारी जो फूड क्रेविंग्स है उनको कंट्रोल कर पाओगे, हेल्थ पैरामीटर्स बेटर होंगे, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू वुड बी फीलिंग मोर एनर्जेटिक एंड would be able to get out of some of the chronic issues that you might be having, or at least get a lot of relief from it. So the entire program has a few live sessions. उसमें डाइट ट्रैकिंग रहेगी थ्रू एन एक्सेल शीट एक्सेट्रा. वील बी ट्रैकिंग योर डाइट. वेट ट्रैकिंग रहेगी. काफी सारी रेसिपी बुक्स हैं जो इसके साथ में मिलेंगी, सत्यजीत जी की खुद की बनाई हुई. कुछ रेफरेंस मटेरियल भी एडिशनल मिलेगा आप लोगों को. प्लस देयर वुड बी अ कम्युनिटी क्रिएटेड सो दैट एवरीवन कैन बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर. वो सारी चीजें रहेंगी इसके साथ में. Now, if I talk about how the entire course is, so the course has these many sessions. You can log on to the website and you can go through all of this, etc. in brief. जब भी आप course purchase करोगे, so all of this will open up for you, and you will be able to see the information which would be relayed to the participant inside this course, basically. So it would be through your login and so on. So that login would be created for you. So there would be primarily 4 sessions, which would be group sessions. छोटे छोटे सेशंस होंगे. पहला सेशन थोड़ा सा बड़ा होगा, so that enough information is given out to you, so that you are well prepared to take the course forward. And finally, it would be a personalization. लगातार आप इंटरेक्ट करते रहोगे ग्रुप में सत्यजीत जी के साथ में. पैरामीटर्स ट्रैक होते रहेंगे, इम्प्रूवमेंट, सजेशन, चेंजेस लगातार चलते रहेंगे. ऑल ऑफ दैट वुड बी कंटिन्यूअस प्रोसेस.